السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائنا ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان حفصہ آصف۔ یہ پروگرام GNN اور چائنا میڈیا گروپ کے تعاون سے آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پروگرام میں ہم ترقی کے میدان میں چین کی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ چینی ثقافت، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر، برف باری اور مصنوعی ذہانت سمیت دیگر دلچسپ رپورٹس بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ چائنا دس ویک سے۔ موسم بہار کی تعطیلات کے دوران چین کی سائنسی ایجادات میں بڑا اضافہ ہوا، جس میں روبوٹس نے سیاحوں کو حیران کیا۔ چین کے صوبہ ہوبی میں روبوٹ کتے اور شیر کے رقص کا مظاہرہ ہوا، جس نے سیاحوں کی توجہ حاصل کی۔ اس سال 29 جنوری کو چینی نیا سال منایا گیا، جو سانپ کے سال کا آغاز ہے۔ چین کی 2025 کی بہار کی تعطیلات میں سائنسی اور تکنیکی عناصر کا اضافہ ہوا، جس میں روبوٹس نے سیاحوں کو حیران کر دیا۔ چین کے ہوبی صوبہ میں انچی گرینڈ کینن میں روبوٹس، کتے اور شیر کے رقص کا مظاہرہ ہوا، جس نے سیاحوں کی توجہ حاصل کی۔ ایک سیاح نے کہا، یہ بہت زبردست تھا، بچوں کو بہت پسند آیا۔ بیجنگ میں اس سال پہلی بار AIT مندر میلے کا انعقاد ہوا، جس میں سائنسی اور تکنیکی عناصر کا حسین امتزاج تھا۔ سب سے زیادہ توجہ کا مرکز روبوٹ بینڈ تھا، جس میں روبوٹس ڈرم، کی بورڈ، بیس اور گٹار بجاتے تھے۔ مندر میلے میں روبوٹ اسپیکنگ اوپرا کا انداز بھی بہت زیادہ پسند کیا گیا اور گوشی، فارسی جیسے چین کے روایتی نعرے 5 مختلف خطوط میں لکھے گئے۔ اس کے علاوہ روبوٹس نے مٹھائی بنائی اور میٹھے پکوان تیار کیے، جس سے لوگوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کا قریب سے تجربہ کیا۔ چین میں موسم بہار کی تعطیلات 28 جنوری سے 4 فروری تک جاری رہیں گی۔ اس دوران ریلیز ہونے والی فلموں نے چینی باکس آفس پر 7.5 بلین یوان کی آمدنی حاصل کر کے نیا ریکارڈ قائم کیا۔ چین کی 2025 کی بہار کی تعطیلات جو 28 جنوری سے 4 فروری تک جاری ہیں، ان تعطیلات میں باکس آفس پر 7.5 بلین یوان کی آمدنی حاصل کر کے نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ ناجا ڈیمن چائلڈ کانکرز دی سی، جو 2019 کی اینیمیٹڈ ہٹ کا تسلسل ہے، پہلے نمبر پر ہے۔ اس کے بعد ڈیٹیکٹیو چائنا ٹاؤن 1900، جو ڈیٹیکٹیو فرینچائز کی چوتھی قسط ہے، اور کریشن آف دی گاڈ، دی ایپک میتھولوجیکل بلاک بسٹر، جو تیسرے نمبر پر ہے۔ نیجا خاص طور پر مقبول ہے، اس کے 30% سے زیادہ ناظرین گروپوں میں فلم دیکھ رہے ہیں، جو دیگر فلموں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ یہ فلم تمام عمر کے افراد کے لیے مناسب ہے اور بہت سے والدین اپنے بچوں کے ساتھ فلم دیکھنے آئے ہیں۔ کریشن آف دی گاڈ کی خصوصی اثرات کو بھی سراہا گیا ہے۔ اس بہار کی تعطیلات نے چین میں فلموں کا ایک بڑا موسم بنا دیا ہے۔ چین میں 6 فلمیں ریلیز ہوئیں، جو ایکشن، کامیڈی، مارشل آرٹ، سائنسی فکشن اور اینیمیشن جیسے مختلف اصناف پر مشتمل ہیں۔ چین کی فلمی مارکیٹ نے اب شمالی امریکہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا بھر میں پہلے نمبر پر جگہ بنا لی ہے۔ چین بھر میں موسم بہار کی تعطیلات میں روایتی اور جدید ثقافت کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملا، جس میں مختلف شہروں میں منفرد تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ شمال مشرقی چین میں مقامی ڈریگن ڈانس نے خوش قسمتی کا پیغام دیا۔ چین کی بہار کی تعطیلات میں روایتی اور جدید ثقافت کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملا، جس میں مختلف شہروں میں منفرد تقریبات منعقد ہوئیں۔ شنیانگ شہر شمال مشرقی چین کے لیانگو صوبے میں مقامی ڈریگن ڈانس نے خوشی اور خوش قسمتی کا پیغام دیا۔ مشرقی چین کے انہوئی صوبے میں ماں انشا میں تاؤ ما دینگ رقص نے روایتی ثقافت کا قریب سے تجربہ فراہم کیا۔ مشرقی چین کے جیانگسو صوبے میں چینگشو شہر میں تعطیلات کے دوران مقامی اور غیر ملکی سیاحوں کی بڑی تعداد آئی، جو ڈریگن اور شیر کے رقص اور بہار کی تعطیلات کی دعاؤں سے محظوظ ہوئے۔ سچوان صوبے کے یبین میں قدیم لزونگ شہر میں مکئی کے ڈریگن رقص نے خوشحالی اور امن کی دعا کے ساتھ جشن منایا۔ دیگر مقامات جیسے کوانگزو، ہوزو اور ایچن میں بھی مختلف ثقافتی سرگرمیاں اور موسم سرما کے مناظر نے تعطیلات کو دلچسپ بنایا۔ موسم بہار کی تعطیلات کے دوران جنوبی چین کے صوبہ گوانگ ڈونگ میں اویکنگ لائن ڈانس کی قدیم روایتی ثقافت، جو لوگوں میں خوشی، جوش اور روایتی چینی ثقافت کو فروغ دے رہی ہے، جو ہر تہوار کا لازمی حصہ اور طاقت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔
चीन के जनूबी सूबे क्वांगटांग में अवेकनिंग लाइन रक्स की कदीम रवायती सकाफत जो 28 जनवरी से 4 फरवरी तक जारी बहार की तातीलात के दौरान पेश की जा रही है, लोगों में खुशी, जोश और रवायती चीनी सकाफत को फरोग दे रही है। अवेकनिंग लाइन रक्स चीन के रवायती शेर के रक्स का जनूबी अंदाज है, जो सिर्फ बहार की तातीलात तक महदूद नहीं बल्कि क्वांगटांग में हर जश्न और त्योहार का लाजमी हिस्सा है। ये रक्स चीनी मार्शल आर्ट्स और शेर की हरकत को मिलाकर ताकत, तवानाई और अज़्म की अलामत बनता है। अवेकनिंग लाइन रक्स न सिर्फ खुशकिस्मती लाने के लिए है बल्कि इसका मकसद कौमी यकजहती को फरोग देना और हमें एक साथ लाना है। ये बात ज़ाओ वीपान अवेकनिंग लाइन रक्स के रवायती जानशीन ने कही। क्वांगटांग में मुख्तलिफ अवेकनिंग लाइन रक्स की इकसाम 3D किंगडम्स के किरदारों के नामों पर मबनी है और हर शेर के रंग और खसूसियात इन अजीम शख्सियात की अलामात हैं। अवेकनिंग लाइन रक्स अब पेचीदा और बसरी तौर पर शानदार परफॉर्मेंस में तब्दील हो रहा है, जो सियाहों को अपनी जानिब खींच रहा है। साल 2025 का स्प्रिंग फेस्टिवल, जो यूनेस्को की सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल होने के बाद पहला फेस्टिवल था, चीन की रवायती मिट्टी के मुजस्मों की फरोख्त में इजाफे का बायस बना। मुजस्मा साज ओवर टाइम लगाकर बढ़ती हुई तलब को पूरा कर रहे हैं। इस साल का बहार का त्यौहार, जो यूनेस्को की गैर मादी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल होने के बाद पहला था, चीन में रवायती नी गोगो मिट्टी के मुजस्मों की फरोख्त में इजाफे का बायस बना। कारीगर इजाफी वक्त काम करके बढ़ती हुई तलब को पूरा कर रहे हैं और गैर मादी सकाफती विरसे की बढ़ती हुई मकबूलियत का तजर्बा कर रहे हैं। नी गोगो हन्नान सूबे की शियानान काउंटी का एक रवायती मिट्टी का मुजस्मा है जो फूंक मारने पर मुनफरिद आवाज पैदा करता है। 2006 में कौमी गैर मादी सकाफती विरसे के तौर पर तस्लीम होने वाला ये फन अब भी मकबूल है। इसके तैयार करने का अमल पेचीदा होता है, जिसमें शक्ल देना, तराशना, छेदना, खुश्क करना और रंग करना शामिल है और हर मरहला इसकी सकाफती अहमियत और मुनफरिद दिलकशी का हिस्सा बनता है। मकामी कारीगर का कहना है, 2 माह से ज़्यादा हो गया कि हम मसरूफ़ हैं और मैं हर दिन 60 से 70 मुजस्मे पेंट कर लेता हूँ। नी गोगो मिट्टी के मुजस्मे की मांग में इजाफा शियानान की सकाफती सियाहत और मकामी आमदनी का अहम जरिया बन चुका है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में चीन के किरदार का एतराफ़ किया। उन्होंने चीन के साथ सरमायाकारी में ताउन को मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में चीन के किरदार का एतराफ़ किया और चीन के साथ सरमाया मार्केट ताउन को मज़ीद गहरा करने की ख्वाहिश का इजहार किया। पाकिस्तान 2022 में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम और डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे तमाम डिजिटल गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला मुल्क बना था। VEF इजलास के दौरान CGTN से बात करते हुए औरंगज़ेब ने पाकिस्तान की डिजिटल तब्दीली में चीन की मुआवनत को सराहा। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस बात पर फख्र करता है कि ये पहला डिजिटल FDI इनिशिएटिव पाकिस्तान के लिए शुरू किया गया, जिससे चीन के माली, कामयाबी और इल्म के मुंतकिली के फायदे हासिल हो रहे हैं। औरंगज़ेब ने मजीद कहा कि पाकिस्तान चीन के पांडा पॉन्ड्स के इजरा पर भी बात कर रहा है, जिससे दोनों मुमालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। चीनी हुकूमत की तजवीज़ पर 60 से ज़ायद शहरों ने सस्ती रिहाइश के लिए हाउसिंग स्टॉक की खरीदारी को तेज़ करने की तजावीज़ पर काम शुरू कर दिया। 12 से ज़ायद शहरों ने 1,50,000 से ज़्यादा यूनिट्स खरीद लिए, जिन्हें हुकूमत की सब्सिडी वाली सस्ती रिहाइश में तब्दील किया जा सकेगा। चीन की मरकजी हुकूमत की तजवीज़ के जवाब में 60 से ज़ायद शहरियों ने सस्ती रिहाइश के लिए हाउसिंग स्टॉक की खरीदारी को तेज़ करने की तजवीज़ को खुशामदीद कहा। 1 दर्जन शहरों ने 1.5 लाख से ज्यादा यूनिट्स खरीदे हैं ताकि इन्हें हुकूमत की सब्सिडी वाली सस्ती रिहाइश में तब्दील किया जा सके। कम से कम 32 शहरों ने इस तजवीज़ को अमली जामा पहनाने के लिए अपने तफसीली मंसूबे जारी किए हैं। ग्वाजा सूबे के गोईशांग शहर में मकामी रियासती मालियत वाले इदारों ने 1190 सस्ते मकानात किराए पर खरीदे हैं, जिन्हें हुकूमत की सब्सिडी के साथ फराहम किया गया है। चांगचन शहर ने 6,837 मौजूदा कमर्शियल हाउसिंग स्टॉक खरीदे हैं, जिससे 11,300 सस्ते मकानात की फराहमी में इजाफा होगा। दीगर शहर भी अपनी खरीदारी की मंसूबा बंदी पर सरगर्मी से अमल कर रहे हैं।
हीफे शहर ने 5,733 यूनिट्स खरीदे हैं और चांगशा ने 436 यूनिट्स की खरीदारी की है ताकि नए शहरों की किराए की जरूरियात को पूरा किया जा सके। माहिरीन का कहना है कि इस खरीदारी से न सिर्फ रहाइश की जरूरियात पूरी होंगी बल्कि ये रहायशी स्टॉक को तेज रफ्तारी से जम करने में मदद करेगा, जिससे रियल एस्टेट मार्केट में इस्तेकाम आएगा। चीन में साल 2025 के आगाज से ही नई तवानाई वाली गाड़ियों की बरामदात में नुमाया इजाफा देखा गया। तवक्को है कि साल के पहले महीने में ऑटोमोबाइल थ्रूपुट 65,000 तक पहुंच जाएगा। चीन के मशरकी सूबे जियांगसू के टाइकेंग पोर्ट ने 2025 के आगाज से नई तवानाई वाली गाड़ियों की बरामदात में नुमाया इजाफा देखा है, जिसकी तवक्को है कि पहले माह में ऑटोमोबाइल थ्रूपुट 65,000 तक जाएगा। टाइकेंग पोर्ट यांगजी दरिया के साथ सबसे बड़ा बरामदी मरकज है, जहां फोटोवोल्टिक्स, न्यू एनर्जी व्हीकल्स और लिथियम बैटरी स्टोरेज कैबिनेट जैसे मसनूआत की बरामद की जाती है और बरामद होने वाली गाड़ियों का मुल्क के कुल बरामदात में 1/3 का हिस्सा है। चीन में तैयार करदा न्यू एनर्जी व्हीकल्स, लिथियम बैटरी स्टोरेज कैबिनेट्स भी टाइकेंग पोर्ट की एक और मकबूल बरामदी चीज बन गई है। इस पोर्ट के ज़ुआंगही इंटरनेशनल वार्फ पर मौसम बहार की तातीलात के दौरान रोजाना औसतन 10,000 TEU के करीब कंटेनर्स थ्रूपुट रिकॉर्ड किया गया और वार्फ के टावर क्रेनें मुकम्मल सलाहियत पर काम कर रही थी। मुख्तलिफ पोर्ट के महकमे हमांगी से बरामदात की रवानी को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मजीद बरां वार्फ को लिथियम बैटरी स्टोरेज कैबिनेट्स के लिए हिफाजती मियार के मुताबिक जल्द अज जल्द दोबारा तामीर किया गया था। चीन आगाज से ही गुर्बत को रोकने में कामयाब हुआ। दही बहाली के जरिए गुर्बत के खात्मे के नताइज को मुस्तहकम किया। वजारत ज़राअत और दही अमूर के मुताबिक इससे जाहिर होता है कि चीन ने गुर्बत में कमी के लिए अपने अहदाफ में अहम तरक्की हासिल की है। चीन ने अबूरी मरहले के आगाज से गुर्बत में वापसी को कामयाबी से रोका है और दही एहया के जरिए गुर्बत के खात्मे के नताइज को मुस्तहकम किया है। वजारत ज़राअत और दही अमूर के मुताबिक मज़कूरा कामयाबियाँ जाहिर करती हैं कि चीन ने गुर्बत में कमी के लिए अपने अहदाफ में अहम तरक्की की है। माजी के करीब खानदानों में तालीम, सेहत की देखभाल, महफूज रिहाइश और पीने के पानी तक रसाई में बेहतरी आई है। साबिका गरीब अजला में सनती तरक्की ने मजमूई तौर पर 1.7 खरब युआन की पैदावार की है। चीन ने 832 गरीब अजला में कामयाबी से सनतों की तरक्की और नए ज़राई कारोबार में मुनाफे की तकसीम ने मुईशत को मजबूत किया है और 30 मिलियन से ज़ायद अफराद को मुस्तकिल रोजगार फराहम किया गया है। चीन ने 800 मिलियन अफराद को गुर्बत से निकाला और अक़वाम मुत्तहिदा के 2030 के पायदार तरक्की के एजेंडे के अहदाफ को एक दहाई कबल पूरा किया। हर साल 10 मिलियन अफराद को गुर्बत से बाहर निकाल कर आलमी सतह पर गुर्बत में कमी की कामयाब मिसाल कायम की है। कारोबारी बरादरी ने अमेरिका के चीन से दरामदशुदा माल पर 10% इजाफी टैक्स आयद करने के फैसले पर गहरे अफसोस का इजहार किया। इसकी सख्त मुखालिफत की। हुकाम का कहना था कि अमेरिका का यकतरफा टैक्स आयद करना WTO कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। चीनी कारोबारी बरादरी ने अमेरिका के चीन से दरामदशुदा माल पर 10% इजाफी टैक्स आयद करने के फैसले पर गहरे अफसोस का इजहार किया है और इसकी सख्त मुखालफत की है। ये बात चीन की बैनुल-अक़वामी तिजारत को फरोग देने वाली अहम तंजीम ने इतवार को कही। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए, जिसमें चीन से दरामदात पर इजाफी 10% टैक्स आयद किया गया था, जिसका जवाब फैंटल और दीगर मसाइल पर था। चाइना काउंसिल फॉर द प्रमोशनल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका का यकतरफा टैक्स आयद करना WTO कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है, जिसके नतीजे में कई अमेरिकी कारोबारियों और सार्फिन को इजाफी लागत का सामना करना पड़ेगा और चीन अमेरिका इक़्तिसादी और तिजारती ताउन में खलल आएगा, जो आलमी सनती और सप्लाई चीन के इस्तेहकाम को मुतासिर करेगा। तर्जुमान ने अमेरिका पर जोर दिया कि वो अपने गलत इक़दामात को फौरी तौर पर दुरुस्त करे और चीन के साथ मिलकर आलमी इक़्तिसादी तरक्की में इस्तेहकाम और मुस्बत तवानाई को फ़रोग़ दे। चीन की मसनूई ज़हानत स्टार्टअप डीप सी के ओपन सोर्स मॉडल ने अमेरिका की टेक्नोलॉजी अजादारी को चैलेंज कर दिया। चीनी प्रोफेसर शेन यी का कहना है कि ये चीन की तरक्की को दबाने की अमेरिकी कोशिश है।
चीनी मसनूई ज़हानत AI स्टार्ट अप डीप सीक की ओपन सर्विस मॉडल ने अमेरिका की टेक्नोलॉजी अजादारी को चैलेंज किया है और ये चीन की टेक्नोलॉजी की तरक्की को दबा देने की अमेरिकी कोशिशों का एक और वाज़ेह मिसाल है। ये कहना है चीनी प्रोफेसर शियान जी का। चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क को दिए गए इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि डीप सीक कुछ अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए तशवीश का बायस है जो मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजी से माली फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। डीप सीक 2023 में कायम होने वाली चीनी AI कंपनी है। जनवरी 2025 में कंपनी ने अपना जदीद मॉडल डीप सीक R1 जारी किया जिसने अपनी तरक्की याफ्ता इस्तेदाल की सलाहियतों के बायस आलमी तवज्जो हासिल की। कहा जा रहा है कि मॉडल की कारकर्दगी मारूफ AI सिस्टम जैसे ओपन AI के चैट GPT के अहम पल्ला है, लेकिन इसकी तरक्की की कीमत बहुत कम है। शैन ने कहा कि अमेरिका की तरफ से इसकी मुखालफत और दबाव चीन की साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की को रोकने में नाकाम होगा, क्योंकि चीन ने खुद से तरक्की याफ्ता साइंसी टेक्नोलॉजी में अहम कामयाबियां हासिल की हैं जो अमेरिका की अजारदारी को तोड़ रही हैं। जनूबी चीन के शहर शेंजिन ने मसनूई ज़हानत की सनत के फ़रोग़ के लिए इक़दामात तेज़ कर दिए, जिसका मकसद स्मार्ट सिटी की तामीर को तेज़ करना है। चीन के जनूबी शहर शेंजिन की मसनूई ज़हानत AI की सन्नत के फ़रोग़ के लिए इक़दामात तेज़ कर दिए हैं ताकि इसकी स्मार्ट सिटी की तामीर को तेज़ किया जा सके। शेंजिन में 5G से चलने वाली स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं जिन पर LED स्क्रीनें, कैमरों और माइक्रोफोन्स की मौजूदगी है। ये लाइट्स गैर कानूनी पार्किंग या कूड़ा करकट की इत्तला देने के साथ साथ ट्रैफिक, हवा के मेयार और शोर की सतह पर नजर रखती हैं। इसके अलावा शहर के सबवे सवारियों को मेट्रो कार्ड या फोन की जरूरत नहीं होती, बल्कि इनका चेहरा ही अदायगी के लिए इस्तेमाल होता है। सबवे स्टेशनों में खुदकार काउंटर्स हैं जो आवाज की पहचान, AI और बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुसाफिरों को मदद फराहम करते हैं। शेंजिन ने 2024 में मसनूई ज़हानत के शोबे की तरक्की को तेज करने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात का ऐलान किया था और अब वो 2000 से ज़ायद AI कंपनियों का घर है। शहर के ओहदेदार लिन ही के मुताबिक हुकूमत AI मॉडल्स की कीमतों को कम करने और कंप्यूटिंग, डेटा फीडिंग और हुनर की मुकम्मल मुआवनत फराहम करने के लिए इक़दामात कर रही है, जिसके जरिए AI और रोबोट्स के लिए 1 खरब युआन का माहौलियाती निज़ाम तश्कील दिया जा रहा है। चीन के जनूब मगरबी इलाके में खौफनाक ज़ल्ज़ले के बाद एक गांव में किरानों की दुकान दोबारा खुल गई, जिसे दुकान की मालिक और हुकूमत की बरवक्त इमदाद की बदौलत दोबारा खोला गया। चीन के जनूब मगरबी इलाके डांगरी काउंटी में एक ताकतवर ज़ल्ज़ले के बाद एक गांव की किराना की दुकान दोबारा खुल गई है, जिसे इसके मालिक और हुकूमत की बरवक्त इमदाद की बदौलत दोबारा खोला गया। ज़ल्ज़ले के बाद मकामी लोग इसी दुकान के बच जाने वाले सामान पर गुजारा कर रहे थे। 7 जनवरी को आने वाले 6.8 शिद्दत के ज़ल्ज़ले ने डांगरी काउंटी को शदीद नुकसान पहुंचाया, जिसके नतीजे में 126 अफराद हलाक हुए और 337 अफराद के जख्मी होने की इत्तला मिली। टोगलाई गांव में नूरपो, जो 2 बच्चों का वालिद है, अपनी बीवी के साथ दुकान चलाता था। ज़ल्ज़ले के बाद नूरपो ने अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो ना निकल सका और बिस्तर के नीचे छुपकर ज़ल्ज़ले के फौरन बाद नूरपो ने बचाव की टीम के साथ जिंदा बच जाने वाले लोगों की तलाश शुरू की और अपनी वैन में बाकी बच जाने वाले सामान को गांव के मुतासिरा लोगों तक पहुंचाया। इसके बाद नूरपो ने एक आरजी मकान के करीब अपनी दुकान दोबारा खोलने का फैसला किया और इसे अपनी बीवी के नाम पर रखा ताकि ये नए साल की खुशी की अलामत बन सके। नूरबो ने कहा, हम मिलकर एक बेहतर और खुशहाल जिंदगी के लिए मेहनत करेंगे। शुमाल मगरबी चीन में होने वाली बर्फबारी ने मुतासरा इलाकों में सड़कों पर ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया। बर्फबारी के बाद मकामी हुक्काम ने महफूज आमदरफ्त को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए। चीन के शुमाल मगरबी और वस्ती हिस्सों में जुमेरात की सुबह होने वाली भारी बर्फबारी ने मुतासिरा इलाकों में सड़कों की ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया, जिसके बाद मकामी हुक्काम ने महफूज आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए। होचन काउंटी ज़ांगजियांग के इलाके में 30 एक्सप्रेस वे के गांव सेक्शन में बर्फबारी ने गाड़ियों की आमदोरफ्त को मुतासिर किया,
जिस के नतीजे में सड़कें फिसलन का शिकार हो गईं। मकामी ट्रैफिक पुलिस ने फौरी तौर पर इक़दामात करते हुए ट्रैफिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े ट्रकों पर पाबंदियां आयद की। गॉन्सू सूबे में भी भारी बर्फबारी के नतीजे में शहर तियानशई, लोंगवांग और डांगसी में सड़कों पर रुकावटें आईं, जिन्हें हुकाम ने बर्फ साफ करने की कार्रवाइयां शुरू करके बहाल किया। हन्नान सूबे में भी जुमेरात की शाम से बारिश और बर्फबारी जारी है, मगर इसका सड़कों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा और ट्रेन और फिजाई ट्रैफिक में कोई बड़ी खलल नहीं आई। यहाँ वक्त है ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। चीन के नए कमरी साल की मुनासबत से पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में चाइना मीडिया ग्रुप की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, पाक चीन दोस्ती कई दहाइयों पर मुहित और हमें अपने बड़ों से विरासत में मिली है। चीन के कमरी नए साल की मुनासिबत से इस्लामाबाद में चाइना मीडिया ग्रुप की जानिब से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के वफाकी वज़रा और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाक चीन दोस्ती कई दहाइयों पर मुहित है और ये हमें अपने आबा व अजदाद से विरासत में मिली है। आज चाइनीज़ मीडिया ग्रुप की दावत पर मुझे इस तकरीब में शिरकत का मौका मिला और ये चाइनीज़ नए साल का आगाज़ है, ईयर ऑफ विजडम है। और पाक चीन दोस्ती जो है वो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि वो हमें कई दहाइयों पर मुहित, हमें अपने आबा व अजदाद से विरासत में मिली है। वो आपको नज़र आएगा कि वो ना सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, पीपल टू पीपल, बहुत ज़्यादा हमारी आवाम का उनके आवाम के साथ जो एक वालियाना मोहब्बत का रिश्ता है। चाइनीज़ लीडरशिप के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का जो विज़न है, वन बेल्ट वन रोड का, सीपैक फेज़ 1 मुकम्मल हुआ, सीपैक फेज़ 2 की तरफ हम मूव किए। अभी गवादर के एयरपोर्ट का इफ्तिताह हुआ है, गवादर में पहली फ़्लाइट लैंड की है। वन बेल्ट वन रोड जहाँ जहाँ जाती है, मईशत के समरात इससे जुड़े हुए हैं। हम इस पाक चीन दोस्ती के अमीन भी हैं, इस पाक चीन दोस्ती के कस्टोडियन भी हैं और हमारा कौमी फरीज़ा है कि इस पाक चीन दोस्ती को हमने, जैसे हमें मिली थी अपनी पिछली जनरेशन से, हमने अगली जनरेशन को उससे भी ज़्यादा मजबूत तौर पे इसको ट्रांसफ़र करना है और ये दोस्ती आने जाने वाले वक्तों की मोहताज नहीं है। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख ने चाइना मीडिया ग्रुप को एक मुतहर्रिक और फ़ाल नशरियाती इदारा करार देते हुए कहा कि चीन ने अपने तालीमी निज़ाम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया है। चाइना मीडिया ग्रुप जो है वो बहुत एक्टिव है और चाइनीज़ न्यू ईयर का जो कमरी साल का इफ्तिताह होता है, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चाइना का हमेशा साल जो शुरू करते हैं इसमें काफ़ी खुशी होती है। चाइना में शुरू से ही उन्होंने तालीम पे बहुत ज़्यादा जोर दिया, तो ऐसी तालीम जो चाइना ने शुरू किया, जो मैं उनसे सीखता हूँ और समझता हूँ, चाइना के निज़ाम ने, मैं जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, अब हर किस्म के हर जगह तरक्की उन्होंने की है और ख़ास तौर पे लोगों के जो म्यार ज़िंदगी में तरक्की हुई है, जो उनकी आमदनी बढ़ी हैं और जो उनको बेहतर मिडल कम्युनिटी जो उनके यहाँ बहुत बड़ी तादाद में चाइना में हुई है, वहाँ पे अमीर और गरीब का इतना फ़र्क नहीं है। जिस तेज़ रफ्तारी से चाइना ने तरक्की की है वो एक बहुत बड़ी मिसाल है। पाकिस्तान में चीनी सिफारत खाने के सकाफती काउंसलर शनफंग ने कहा कि चीन का नया साल खुशकिस्मती की अलामत है और स्प्रिंग फेस्टिवल चीनी कौम का सबसे अहम त्यौहार है। उन्होंने मजीद कहा कि चीन पाकिस्तान ताउन हर शोबे में बेमिसाल है। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद ने चीनी कौम को कमरी नए साल की मुबारकबाद देते हुए कहा कि गवादर में नए हवाई अड्डे की तामीर सीपैक मंसूबे के तहत एक अहम पेशरफ्त है। उन्होंने मजीद कहा, मैं ख़ास तौर पे मुबारकबाद देता हूँ चाइना मीडिया ग्रुप को, क्योंकि चाइना मीडिया ग्रुप चाइना के बारे में मालूमात, हक़ाइक़, चाइना की तरक्की से हमें आगाह भी करता है, हमें फराहम करता है मुख्तलिफ मालूमात। हम चाइना मीडिया ग्रुप से सीखते भी हैं। एंड एज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग सेड व्हेन ही विजिटेड द हेडक्वार्टर्स ऑफ द चाइना मीडिया ग्रुप 10 years ago, टेल चाइना स्टोरी टू द वर्ल्ड एंड टेल इट वेल। और आप बड़े बेहतरीन अंदाज में चाइना की स्टोरी, जैसे शी जिनपिंग साहब ने कहा था, वो बयान कर रहे हैं। गया दौर सरमायादारी गया, तमाशा दिखा के मदारी गया।
The rise of China and the dawn of the Asian century was predicted by the great Allama Iqbal, and today we are seeing that rise. So congratulations to China on the great achievement of DeepSeek. तकरीब के दौरान चीन की सकाफत के रंगों का शानदार मुजाहरा किया गया। और चाइना मीडिया ग्रुप के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला की दिलकश झलकियों से हाज़रीन खूब महसूस हुए। चाइना मीडिया ग्रुप की जानिब से बहुत अच्छी तकरीब थी, बड़ा मज़ा आया यहाँ पे। और क्योंकि चीन इस वक्त जो है दुनिया भर में पाकिस्तान का एक ऐसा दोस्त है जिस पर हम जो है खुलकर एतमाद करते हैं, और इस वक्त पाकिस्तान में जो तरक्की हो रही है उसमें भी चीन का बहुत बड़ा हाथ है। CPEC 1 मुकम्मल हुआ है, CPEC 2 जो है उसका आगाज़ हो चुका है, गवादर एयरपोर्ट का जो है वो आगाज़ हो चुका है, और इन सारे मंसूबों में चीन हमारे साथ रहा। शाहराह रेशम से लेकर गवादर एयरपोर्ट तक इस वक्त चीन ही चीन हमारे साथ जो है दिखाई देता है, और ये वो वाहिद दोस्त है जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। हमारी बेस्ट विशेज़ हैं तमाम अपने चाइनीज़ फ्रेंड्स के लिए कि नया साल जो है वो उनके लिए बहुत अच्छा साबित हो। अगर आप देखें तो इनकी चाइनीज़ वैल्यूज़ और हमारी वैल्यूज़ बहुत हद तक एक जैसी हैं। जिस तरह ये अपने इवेंट सेलिब्रेट करते हैं, मोर और लेस वैसा ही हमारा तरीका है कल्चर सेलिब्रेट करने का। जिस तरह हमारी ईद है, इसी तरह इनके ये फेस्टिवल्स हैं। तो बहुत ज़्यादा, ताकि आपको पता है कि CPEC की वजह से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है लोगों में। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं कुछ साल पहले चाइना का विज़िट कर चुकी हूँ और मैंने वहाँ से ट्रेनिंग ली थी, तो मुझे तो इनके कल्चर और चाइनीज़ जो ट्रेडिशंस हैं इनके बारे में वैसे भी कुछ नो हाउ है, तो हमें बहुत मज़ा आया। मुझे तो वो तमाम यादें दोबारा आ गई क्योंकि जब मैं वहाँ थी तो मैंने ये सब चीज़ें अपने सामने देखी हैं। और जैसे कुछ यहाँ पे सीनियर्स ने कहा कि चाइना जाके भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अपना घर ही है, तो सेम मुझे भी वहाँ पे भी ये फीलिंग आई, और आज मुझे यहाँ बैठ के ऐसा लगा कि मैं चाइना में चली गई। चाइना मीडिया ग्रुप पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान दोस्ती के इजहार और दोनों ममालिक के बाहमी ताउन को उम्दगी से उजागर करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। 20वीं सदी के इख्तिताम से चीन में जदीद सरमाई खेलों का आगाज हुआ। शुमाल मशरकी चीन का शहर हार्बिन यूरोप में खेले जाने वाले इन खेलों की मेजबानी करने वाला पहला चीनी शहर बना। 19वीं से 20वीं सदी के इख्तिताम के दौरान चीन में जदीद सरमाई खेलों का आगाज हुआ और चीन का शिमाल मशरकी शहर हार्बिन यूरोप में खेले जाने वाले इन खेलों को कबूल करने वाला पहला चीनी शहर बना। मौसम सरमा के खेलों में देरीना रिवायत रखने वाला ये शहर 7 फरवरी 2025 से नवे एशियाई सरमाई खेलों की मेज़बानी कर रहा है। हार्बिन म्यूजियम में दिखाई जाने वाली पुरानी तस्वीर मौसम सरमा के खेलों में शहर की भरपूर तारीख का सबूत है। इन तस्वीर में से एक तस्वीर 1935 में चीन के पहले स्की रिजॉर्ट यूचुआन बीजी स्की रिजॉर्ट में ली गई है, जो हार्बिन के ईचिंग जिले में वाक़ है। ये तस्वीर 1957 में पहली नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप के दौरान ली गई थी। तकरीबन 5 माह तक जारी रहने वाले तवील मौसम सरमा में हार्बिन वाकई बर्फ की सरजमीन में बदल जाता है। चाहे वो बालिग हों या बच्चे, सब बर्फ से लुत्फानंदोज होने के लिए बाहर निकल आते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकजी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग ने एक बार कहा था कि 30 करोड़ लोगों को बर्फ के खेलों में शामिल करने के हदफ को हासिल करना ज़रूरी है। हार्बिन आर्काइव्स ब्यूरो के आर्काइव्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर यान जिनली कहते हैं कि हार्बिन ने हमेशा इस सिलसिले में पहल की है। सदर शी चीन में सरमाई खेलों की तरक्की के मजबूत हामी रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले फरवरी 2014 में रूस में सूची सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करते हुए 30 करोड़ लोगों को बर्फ से मुंसलिक सरगर्मियों में शामिल करने का विजन पेश किया था। इस विजन के निफाज के बाद इस पहल को बैनुल अक़वामी खेलों की बरादरी ने इंसानी तारीख में सरमाई खेलों के सबसे बड़े पैमाने पर फ़रोग़ के तौर पर माना है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 18वीं कौमी कांग्रेस के बाद से सदर शी ने चीन में सरमाई खेलों की तरक्की को बहुत अहमियत दी है। 2022 के बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स की कामयाब मेज़बानी के लिए उन्होंने मसाबक़ती इलाकों में 5 दौरे किए
اور چین بھر میں سرمایہ کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے کھیلوں کی میزبانی کو حاصل کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ بیجنگ 2022 کے سرمایہ اولمپکس لاکھوں لوگوں کو برف سے جڑی سرگرمیوں میں مشغول ہونے کی ترغیب دیتے ہیں۔ 2022 کے بعد سے ملک بھر میں 313 ملین افراد نے موسم سرما کے کھیلوں کی سرگرمیوں میں حصہ لیا ہے، جو آبادی کا 22.13% ہے۔ بیجنگ ونگر اولمپکس اور پیرا اولمپکس کی تیاری اور میزبانی نے ان کھیلوں کی ترقی کو آگے بڑھایا ہے۔ چین اور دنیا میں بڑے پیمانے پر برف کے کھیلوں کا ایک نیا دور شروع ہوا ہے۔ صدر شی نے 8 اپریل 2022 کو بیجنگ سرمایہ اولمپکس اور پیرا اولمپکس کے جائزے اور ایوارڈز کی تقریب میں کہا تھا کہ یہ واقعی ایک عظیم دور ہے جو کھلاڑیوں کی اس نوجوان نسل کو متحد ہونے اور صلاحیتوں کے اظہار کے ساتھ ساتھ مل کر مستقبل بنانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ہابن کے قریب پہاڑوں میں واقع یابولی اسکی ریزورٹ اپنے گھنے جنگلات، کثیر برف باری اور شاندار مناظر کے لیے مشہور ہے۔ یہ 1996 کے ایشیائی سرمائی کھیلوں کی میزبانی کے بعد مشہور ہوا اور اب 2025 کے ایشیائی سرمائی کھیل اس مقام پر واپس آئے ہیں۔ ایک صدی پر محیط تاریخ کے ساتھ برف اور برف کے کھیل پہلے ہی ہاربن کے ثقافتی منظرنامے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہاربن میں مقامی آبادی کا 15% سے زیادہ حصہ باقاعدگی سے سال بھر شہر بھر کے مختلف مقامات پر برف کے کھیلوں میں حصہ لیتا ہے، جو چین میں پہلے نمبر پر ہے۔ صدر شی کی حوصلہ افزائی نے نہ صرف سرمائی کھیلوں کو فروغ دیا ہے بلکہ نئے دور میں ایک مضبوط اسپورٹس نیشن کی تعمیر میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ 8 اپریل 2022 کو بیجنگ 2022 سرمایہ اولمپکس اور پیرا اولمپکس کے جائزے اور ایوارڈز کی تقریب میں انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد لوگوں کی جسمانی صحت کو بہتر بنانا اور ان کا معیار زندگی بلند کرنا ہونا چاہیے، اور ہمیں لوگوں کی ہمہ جہت ترقی کو آگے بڑھانے میں کھیلوں کے اہم کردار سے پوری طرح فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہم اپنے لوگوں، خاص طور پر نوجوانوں میں کھیلوں اور جسمانی تندرستی کے بارے میں بیداری پیدا کریں گے، بین الاقوامی مسابقتی کھیلوں میں ملک کی مجموعی طاقت اور مسابقت کو فروغ دیں گے اور چین کو کھیلوں میں ایک مضبوط ملک بنانے کی کوششوں کو آگے بڑھائیں گے۔ چین کے شہر ہاربن میں 9ویں ایشیائی سرمائی کھیلوں کا انعقاد ہوا۔ کھیلوں کے مقابلوں میں پاکستانی کھلاڑیوں نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل پاکستان سپورٹس بورڈ محمد شاہد اسلام کا کہنا ہے کہ چین دنیا بھر میں کھیلوں کے فروغ میں سر فہرست ہے۔ ہم کنٹینیوسلی ونٹر سپورٹس کا حصہ بنتے چلے آ رہے ہیں۔ ونٹر سپورٹس میں ہم کبھی بھی بہت اچھے نہیں رہے۔ اس کی وجہ ہمارا یہاں کا ویدر ہے۔ پاکستان میں نہ تو اس طرح کی برف باری ہوتی ہے، بڑی ایک شارٹ پیریڈ کے لیے برف باری ہوتی ہے، وہ بھی انسرٹن ہوتی ہے، تو ہم ونٹر سپورٹس پہ کوئی زیادہ کام نہیں کر سکتے۔ لیکن ہماری ونٹر سپورٹس فیڈریشن اب اس پر کام کر رہی ہے اور اپنے کھلاڑیوں کی ٹریننگ کا اہتمام بھی کر رہی ہے، اور انشاءاللہ ہوپ فلی نیکسٹ اس کے بعد جو ونٹر سپورٹس آئیں گے تب تک ہم اس پر کافی کام کر چکے ہوں گے۔ چائنا، آپ کو علم ہوگا کہ بیجنگ اولمپکس کے بعد چائنا سپورٹس کے اندر ایک نئے لیڈر کے طور پر ابھرا ہے، اور وہ اولمپکس ہوں، وہ ایشین گیمز ہوں، چائنا ہر جگہ اب وہ لیڈ کر رہا ہے آلموسٹ۔ اس لیے ہمیں اس کی اس لیڈرشپ سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس میں بھرپور کوشش ہونی چاہیے، اور یہ ایک فیلڈ ہے جس میں ہم بہت بینیفٹ لے سکتے ہیں۔ سو مچ سو آپ حیران ہوں گے کہ چائنا اب کبڈی کی ٹیم بنا رہا ہے، اور کبڈی میں چونکہ ہم ورلڈ چیمپئن بھی ہیں، ہم ایشین چیمپئن بھی ہیں، اور ہمارے یہاں سے کوچ جا کے چائنا کی کبڈی ٹیم بنا رہا ہے۔ تو میں ان کو از راہ تفنن کہہ رہا تھا کہ چائنا کی کبڈی ٹیم کو آپ ٹرین کرو، پھر ہم انہیں سے ہاریں گے۔ آپ اس طرح سے ان کو ٹرین کر رہے ہیں۔ تو سو دیر ہے لاٹ آف پوٹینشیل کہ ہم اس میں اسپورٹس کے اندر ایک دوسرے سے، خاص طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ ہمالین چین کے اوپر بہت برف باری ہوتی ہے، اور یہ چائنا سے سٹارٹ ہو کر ہمارے اندر آ کر ختم ہوتی ہے۔ تو ہم تو اس میں کوآپریشن، اللہ کا دیا ہوا انفراسٹرکچر ہے جس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اس پر کام ہونا چاہیے۔ اس وقت پاکستان کی آلموسٹ ہر فیلڈ میں چائنیز کوآپریشن جو ہے وہ بہت ایک مستند ایک بات سمجھی جاتی ہے، اور ایسا ہے بھی۔ چائنا ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ہر فیلڈ میں بہت تعاون کر رہا ہے، اور جب سے خاص طور پر سی پیک، جس کو گیم چینجر بھی کہا گیا، ہماری اکانومی کے لیے ایک بڑا بوسٹ تھا۔ اسپورٹس میں بھی چائنا کا تعاون ہے، اور ہمارا ان کے ساتھ آلریڈی ایک ایگریمنٹ بھی سائن ہے، گوادر، جس کے گرد جو نیوکلس ہے سارے پروجیکٹ کا، وہاں
आप वाटर स्पोर्ट्स का दुनिया का सबसे बड़े अरीनास बना सकते हैं। जब आपका ऑब्जेक्टिव सेंट्रल एशिया तक पहुंचना है तो सेंट्रल एशिया एक लैंड लॉक्ड एरिया है, सिवाय एक छोटा सा कैस्पियन है, बाकी कुछ भी नहीं वहाँ पर। और वो सेंट्रल एशिया में वाटर स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा है, कोई 40 के करीब वाटर स्पोर्ट्स खेली जाती हैं। अब वो सारे के सारे ट्रेनिंग के लिए मोस्ट ऑफ देम टर्की आते हैं। टर्की के समंदर जो है वो थोड़े एग्रेसिव है, हमारा समंदर इतना क्वाइट एंड काम है कि वो बना बनाया स्पोर्ट्स अरीना है। तो ये किया जाना चाहिए, एज ए स्पोर्ट्समैन ये बात करता हूँ, ताकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हमारी उस पट्टी के ऊपर आकर पूरा साल ट्रेनिंग कर सकते हैं, हम उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं और सोशल इंटीग्रेशन के लिए स्पोर्ट्स को एज ए टूल हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ वक्त है ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। अगर याददाश्त इंसानी ज़िंदगी को रिकॉर्ड करती है तो इंसानी तहजीब तारीख रकम करती है। सकाफती असार तारीख को रिकॉर्ड करने वाले दस्तावेज़ात की तरह उन तहजीबों के नकूश हमारे सामने रखते हैं जो हज़ारों साल पर मुहीत हैं। आइए चलते हैं शाहराह रेशम पर वाक़े चीन के शांसी हिस्ट्री म्यूज़ियम में। अगर याददाश्त इंसान की जिंदगी को रिकॉर्ड करती है तो इंसानी तहजीब तारीख रकम करती है। सकाफती आसार तारीख को रिकॉर्ड करने वाली दस्तावेजात की तरह उन तहजीबों के नकूश हमारे सामने रखते हैं जो हजारों साल पर मुहीत हैं। अगर आपको चीन के सूबा शांसी की सकाफत देखना चाहते हैं तो आपको जरूर शांसी हिस्ट्री म्यूजियम में आना चाहिए। और आज हम यहाँ चीन के सूबा शांसी की सकाफत और तारीख देखते हैं। चलें हम। शांसी हिस्ट्री म्यूजियम चीन के शहर शियान में वाक़ है, जो मशरिकी और मगरिबी तहजीबों को मिलाने वाली शाहराह रेशम का नुक्ता आगाज है। नफाश को महसूस करने के लिए आइए हम बनी नौ इंसान के कदीम तरीन खादी बर्तनों से शुरू करें और देखें ये कांसी का बर्तन है। क्या आप जानते हैं ये कांसी का प्याला नुमा बर्तन दरअसल 3000 साल पहले बनाया गया था। हमने देखा है कि कांसी से बने बर्तनों की कई अक़साम हैं, जैसे ज़र औज़ार, हथियार और रोजमर्रा के बर्तन। यहाँ कांसी के बर्तन की शक्ल के अलावा उस पर लिखी हुई तहरीर आसार कदीमा के लिहाज से सबसे ज्यादा नायाब है। मिसाल के तौर पर डिंग नामी ये बर्तन है जो कदीम चीन में न सिर्फ खाना पकाने के बर्तन के तौर पर इस्तेमाल होता था, बल्कि शहंशाह की तरफ से कुर्बानियों या तोहफों के लिए भी इस बर्तन को इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए इस पर उस वक्त के मुख्तलिफ वाक़यात को रिकॉर्ड करने के लिए अल्फाज की एक बड़ी तादाद कंदा की गई है। ये सकाफती फंबारा इस म्यूजियम में अहम तरीन खिजानों में शुमार होता है। इसका नाम है तोयोदिंग है। इसके अंदर मौजूद नविश्ताजात में 2000 साल से जायद कदीम एक इंतहाई मुश्किल और तवील जंग की तफसील दर्ज है। डोयोदिंग के अंदरूनी हिस्से में कंदा शुदा मतन की 22 सुतूर लिखी हुई हैं, जिनमें कुल 279 अल्फाज हैं। इस पर मौजूद नविश्ताजात जंग के वक्त और जगह दोनों तरफ के अफराद और जंग की तफसील बयान करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जनरल डोयो ने डोयोदिंग को डिस्प्ले नहीं किया था। वो अक्सर इसे गोश्त पकाने और दोस्तों की तफरीह के लिए इस्तेमाल करते थे। तो पता लगाया गया कि जनरल डोयो बहुत दोस्ताना मिजाज रखते थे, जो बेहतरीन चीजों के साथ दोस्तों की खातिर तवाज़ो पर मबनी रिवायती चीनी लोगों के सादा जज्बात की भी तस्दीक करते हैं। क्या आप तस्वीर कर सकते हैं कि पुराने जमाने में ये तमाम बर्तन सुनहरी हुआ करते थे। अभी हमने जंग के हालात का जिक्र किया तो आपको लाजमन तजस्सुस होगा कि पुराने जमाने में जंग इतना पड़ा है तो बादशाह कैसे अपने फौजियों को हुक्म देते हैं। सब जानते हैं कि पुराने जमाने में टेलीफोन नहीं थे, इसलिए ये चीज नजर आई।
सब जानते हैं कि कदीम ज़माने में टेलीफोन नहीं थे और इत्तलात की तरसील का वाहिद ज़रिया सिर्फ खतूत हुआ करते थे, लेकिन सिर्फ खतूत से ही लोगों की शनाख्त की तस्दीक करना मुश्किल था। इसलिए ये चीज़ नज़र आई, 204 यानी टाइगर तिलिस्म। ये टाइगर तिलिस्म कदीम ज़माने में हुक्म देने या फौज भेजने के लिए एक निशानी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। टाइगर तिलिस्म 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। दाएं निस्फ को शहनशाह अपने पास रखते थे और बायां निस्फ फौज के इंचार्ज जर्नेल को दिया जाता था। जब शहनशाह फौज को मुतहर्रिक करना चाहते तो शहनशाह की तरफ से भेजा गया एलची जर्नेल को तिलिस्म फराहम करता, और जब उसके दोनों हिस्से ठीक से मिला दिए जाते तो इस बात की तस्दीक हो जाती कि एलची शहनशाह की जानिब से ही भेजा गया है। टाइगर तिलिस्म के पेट पर एक खास शक्ल का ढांचा बना होता था, जो कि असल में उसकी मुमकिन जालसाजी को पकड़ने का तरीक़ाकार था। इसके असली न होने की सूरत में दोनों हिस्से इकट्ठे नहीं किए जा सकते थे। शाहराए रेशम ने चीन, वस्ती एशिया और यूरोप को जोड़ दिया। इस अरसे के दौरान तहजीबों ने राब्तों और ताल्लुकात का तजर्बा किया, जिससे बहुत से तारीखी आसार पैदा हुए जो मशरिकी और मगरबी सकाफतों की खुसूसियात को यकजा करते थे। जैसे ये 3 रंगों वाला ऊंट वाज़े तौर पर शाहराए रेशम के जरिए तिजारत, सकाफत और मौसीकी बचाने के मनाजिर को जाहिर करता है। ऊंट रंग बरंगे कंबलों से ढका एक प्लेटफॉर्म उठाए हुए है, जिस पर मौसीकार चीनी रिवायती लिबास में मलबूस हैं और मगरबी मौसीकी के आलात बजा रहे हैं। खूबसूरत मौसीकी के साथ साथ दरमियान में मौजूद खातून गुलकारा सुरीले नगमे सुना रही है। ये एक तरह का मोबाइल ऑर्केस्ट्रा लग रहा है। ऊंट पर बैठे हुए लोग मौसीकी बजा रहे थे और गाना गा रहे थे। इसकी शक्ल और रंग देखें तो कतरे पाकिस्तानी अंदाज लगता है। म्यूजियम में बहुत से शानदार सकाफती आसार भी हैं, जो मशरिक और मगरिब के दरमियान सकाफती तबादले से पैदा हुए हैं। चाहे ये सोने का प्याला हो या ये मुजस्मा, ये न सिर्फ एक अजायब घर है बल्कि चीनी तहजीब का एक फसाना घर भी है। मैंने एक बार फिर अपने मुल्क की तहजीब और सकाफत की लामहदूद दिलकशी को महसूस की। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNH.TV। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।